Hello friends, welcome to my channel. I'm Poonam Dua. With me today you are going to cover some important themes and question answers for Catcher in the Rye MEG 11 novel. इस वीडियो के बाद आप लोग बहुत आराम से अपने MEG 11 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, provided that you have watched the previous video in which I discussed the detailed summary of the same. तो आप इन दोनों वीडियोस को कवर करिए तो आपका ये टॉपिक कैचर इन द रे पूरे तरीके से कवर हो जाएगा. इट विल प्रिपेयर यू फॉर योर MEG 11 एग्जामिनेशन. Please do not forget to share and subscribe the channel. While writing any answer of any topic, you need to give the introduction first. Do not ever jump to the question asked. This is a novel by J.D. Salinger, partially published in a serial form in 1945 to 46 and then as a novel in 1951. J.D. Salinger, very famous American writer with a lifespan from 1919 to 2010, famous for writing this particular novel and very famous for the creation of complex long sentences. ये भी उनका एक बहुत ही important feature था जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है. He was habitual of creating very long sentences in his novels. These are the three basic themes of this novel which we are going to cover today. Protection of innocence जो बहुत ही basic theme है इस novel का. Alienation as a form of self-protection and the symbolization of a museum in this novel. तीनों ही themes जो हैं एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं. आपको general question आ सकता है कि mention some themes. You can mention all the three. And if you are given a particular question, go for that. We are going to discuss each and every theme mentioned here. Again, I'll suggest कि पहले आप लोग डिटेल समरी का वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा. The basic theme is protection of innocence. होल्डन कॉफील्ड, जिसको आप जानते हैं, एक 16 इयर्स का टीनेजर है जो इस दुनिया में होते हुए चेंजेस से खुश नहीं है. Why people are using abusive words, specifically the F words. ऐसे वर्ड्स लोग क्यों यूज कर रहे हैं? Why people are being matured, innocent क्यों नहीं रह सकते सब? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके दिमाग में प्रिवेल करते रहते हैं. तो होल्डन सीज इनोसेंस एज अ प्राइमरी क्वालिटी ऑफ एनीवन. इनोसेंस अगर है तो ये दुनिया बहुत अच्छे से चल सकती है. होल्डन्स एनिमी इज द अडल्ट वर्ल्ड. अपना एनिमी ही कंसिडर करते हैं कि दुनिया में जो भी मैच्योरिटी आ रही है वही उनकी दुश्मन है. एंड होल्डन सीक्रेट गोल इज टू बी कैचर इन द रे. इसको हम डिस्कस करेंगे. पहले इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. जो भी डिस्कशन चल रहा है उसको आप प्लीज नोट करिए. अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करेंगे एग्जामिनेशन में तो दैट विल help you to get a great score. So as the title indicates, the Catcher in the Rye, the dominating theme of Catcher in the Rye is the protection of innocence. Innocence को protect किया जा रहा है, specifically of children. For most of the book, Holden sees this one, innocence one, as the primary major quality that anyone should have, and this quality is closely related to the struggle against growing up. ग्रो अप तो होना ही है, लेकिन जितना अपनी इनोसेंस को बचा कर रख ले, होल्डन को लगता है कि उतना ही अच्छा है. एंड होल्डन कंसीडर्स कि उनके तो एनिमी ही है ये अडल्ट वर्ल्ड. आसपास के बच्चे कितने मैच्योर हो रहे हैं, कितनी क्रूअल, कितनी आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. द रिलेशनशिप्स आर बीइंग आर्टिफिशियल एंड पीपल आर यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स लाइक एफ वर्ड्स. तो आर्टिफिशियलिटी एंटेल हो जाती है अपने आप ही मैच्योरिटी के साथ. आर्टिफिशियलिटी ही नहीं, क्रूअलिटी भी, वायलेंस भी, उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है. वो चाहते हैं कि सभी बहुत ही पीसफुल अपनी अपनी इनोसेंस के साथ इंटैक्ट रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. एज आई टोल्ड यू, होल्डन का सीक्रेट गोल है कि उन्हें कैचर इन द रे बनना है, विच इज द थीम ऑल्सो, विच इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंस. होल्डन इमेजिन करते हैं कि एक क्लिफ है जहां पर कुछ बच्चे हैं और उन्हें उनका प्रोटेक्टर बनना है, उन्हें उन बच्चों को बचाना है. So this title basically is the metaphorical representation of the field of Holden. So Holden's secret goal is to be catcher in the ray, and in this metaphor he envisions, he sees a field of ray standing by a dangerous cliff, and children play in the field with joy and abandon. And if they should come too close to the edge of the cliff, अगर बच्चे यहाँ बहुत close आ गए ना edge की तरफ, तो Holden is there to catch them. That means कि Holden का ये metaphorical representation है बच्चों की innocence को save करना. But his attitude
seems to shift near the end of the novel. End of the novel जब आता है, जब तक आता है, तब तक वो अपना व्यू पॉइंट थोड़ा सा चेंज कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ एक पर्सन के करने से कुछ भी चेंज नहीं आएगा. द वर्ल्ड इज बीइंग मैच्योर, और उनको भी वो चेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. And his attitude seems to be changed when he realizes that Phoebe, जो उनकी छोटी सिस्टर है 10 years की, Phoebe and the other children are changing and they must be allowed to grab for the gold ring. ये एक phrase वो use करते हैं जिसका मतलब है कि people should be allowed to go as per their wishes, as per their own risk, and they should be allowed to take the risk as per their accord. इवन दो देयर अटेम्प्ट्स में बी डेंजरस, लेकिन खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, खुद ही लर्निंग करेंगे, तभी ग्रो कर पाएंगे. तो वो इस ग्रोथ को, इस मेच्योरिटी को स्लोली एंड स्टेडीली बाय द एंड ऑफ द नॉवेल एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि चिल्ड्रन मस्ट बी अलाउड टू ग्रैब फॉर द गोल्ड रिंग. नेक्स्ट थीम इज एलियनेशन, मतलब अपने आप को अलग थलग कर लेना बाकी दुनिया से. Throughout the novel, हमारा जो कैरेक्टर है Holden seems to be excluded from and victimized by the world around him. ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से अलग है और पूरी दुनिया के विक्टिम है वो. He even says once to Mr. Spencer, जो उनके टीचर थे, that he feels trapped on the other side of life. ऐसा लगता है कि किसी और जगह ट्रैप हो गए हैं, बाकी लोग उस दुनिया से बिलोंग नहीं करते. इसी नॉवल में एलियनेशन उनको प्रोटेक्ट करता हुआ तो नजर आता है इनिशियली, लेकिन सीवियरली उनको हार्म भी करता है, क्योंकि अगर हम चेंज होती हुई दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं पीछे रह जाएंगे. सो ही बिकम ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड हिज फियर्स ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट लीड्स टू एलियनेशन एंड लोनलीनेस. धीरे धीरे बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और उनका ये अकेलापन उनको एंकरेज करता है कि ही शुड रीच आउट टू अदर्स. And he makes multiple attempts in New York to connect with people. एक prostitute के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने childhood friends के साथ, सेली हेस, कार्ल ल्यूइस. अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आप इन कैरेक्टर्स को और अच्छे से समझेंगे. और होल्डन इनएविटेबली इन दोनों को ही अपनी इमेच्योर बातों से दूर भी भगा देते हैं, सेली हेस को और कार्ल ल्यूइस को. And he once again begins to feel sad, begins to feel alone, and hence, he largely experiences alienation because he chooses to alienate himself from others. उन्होंने खुद ही चूज किया, उनकी खुद की चॉइस है और इसको वो खुद ही रिमूव करेंगे अपनी इस चॉइस को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं by the end of the novel. Now look here. This person, Holden, has voluntarily alienated himself for too long. अपने आप को जानबूझकर अपनी ही मर्जी से बहुत दूर रखा है उन्होंने इस दुनिया से. लेकिन जैसे जैसे नॉवल का एंड होता है, ही सीम्स टू बी लेस बिटर. उनकी कड़वाहट थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है. एंड वी लर्न बाय द एंड दैट ही हैज लर्न टू वैल्यू अदर पीपल. इस दुनिया में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ थोड़ा एडजस्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं. ही गिव्स अस द होप दैट ही विल soon go to a new school and most probably he will have a successful career over there and he will leave this life behind. तो नॉवल का जो एंड है एलियनेशन से थोड़ा सा हटकर है. होल्डन अपनी एलियनेशन को सेक्रीफाइस कर देते हैं बाय द एंड और रियलाइज कर लेते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट कनेक्टेड टू द अदर पीपल. तो एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म हमें बाय द एंड देखने को मिलती है. अगर हम कहें कि हैप्पीनेस है या नहीं है, दैट विल बी डिबेटेबल. हमें हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती है, एटलीस्ट ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग जरूर मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑफ म्यूजियम सिंबलाइजेशन. म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम हम लोगों ने दिल्ली में और बहुत सारी जगह पर इंडिया में बहुत सारे और म्यूजियम्स देखे होंगे. म्यूजियम्स आर बेसिकली द प्लेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर केप्ट एंड मेंटेन. दैट प्लेस इज कॉल्ड म्यूजियम. और होल्डन भी अपनी लाइफ में यही तो चाह रहे थे, अपने इनोसेंस को मेंटेन करना. तो होल्डन म्यूजियम को मेटाफोरिकली रिलेट कर लेते हैं अपने साथ. द म्यूजियम रिप्रेजेंट्स द फैंटेसी ऑफ होल्डन. Holden's way of saying that he does not want any change in his life. इस सेंस को म्यूजियम रिप्रेजेंट करता है. म्यूजियम में भी कोई चेंजेस नहीं होते ना. अगर कोई पुरानी एशियंट आइटम्स रखी हुई है वहां पर, कोई भी हिस्टोरिकल प्रोडक्ट्स रखी हैं, तो इट रिमेन्स द सेम. होल्डन भी वही चाहते हैं कि म्यूजियम जो है ना वो एक वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है. म्यूजियम इज अ काइंड ऑफ प्लेस दैट होल्डन विशेस ही कुड लिव इन. इट्स द वर्ल्ड ऑफ हिज कैचर इन द रे फैंटेसी. उनकी एक फैंटेसी है ना, उन्हें इनोसेंस को
सिक्योर करना है, प्रिजर्व करना है। वो कहते हैं कि म्यूजियम एक प्लेस है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्यारा है, कुछ भी कभी भी नहीं बदलता। So museum is Holden's way of saying that he does not want any change in his life because of the way things in the museum are the same from back when he was a child. जब म्यूजियम जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ जो चीजें हैं, जब मैं बचपन में आता था तब भी बिल्कुल ऐसी थी और अभी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो हमारा बचपन, हमारी लाइफ, हमारा इनोसेंस क्यों नहीं इंटैक्ट रह सकता? So this is the line which you can even write. The best thing though in that museum was that everything always stayed right where it was. Nobody's moved, nobody be different. कुछ भी नहीं हिलता है, कुछ भी नहीं बदलता है, म्यूजियम में सब कुछ वैसा ही रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो हमारी लाइफ में हमारी इनोसेंस क्यों नहीं प्रिजर्व रह सकती? दिस इज द सिंबलाइजेशन ऑफ म्यूजियम. These three words also you can use: perfect, simple, and genuine world. For Holden, a museum symbolizes perfect, simple, and genuine world that he urges to live in and does not want to change, does not want life to change. He wants his childhood back because of the innocence of it, but he is afraid of losing it. Childhood खोना तो सभी का है, हमेशा childhood intact नहीं रह सकता. Holden is an adult now and changes need to happen. But the thought of that is frightening for him. उनके लिए बड़ा frightening है mature बन जाना. He cannot accept that changes that are happening around him, and sooner or later changes would need to happen in him also. थोड़े time के लिए maybe you can pretend to be innocent, you can continue to be innocent, but after all you will have to change according to the changes in the world. Despite Holden's challenging life obstacles that he had to go through, he is ready to move on with life and be more adult. उनके व्यू पॉइंट तो यही है कि नहीं चेंज हुआ जाए, परफेक्ट रहा जाए, सिंपल रहा जाए, बिल्कुल जेन्युइन रहा जाए. लेकिन बाय द एंड, एज आई टोल्ड यू, ही रियलाइजेस दैट ही also needs to grow up with life. So these are the basic themes. In themes को और summary को अगर आप डिटेल में कवर कर लेंगे, so this topic catcher in the ray will be covered to a great extent. Still, I suggest always try to study in detail. This is just the last minute preparation, but go for it if you have not prepared anything else. You can find the summary in the previous video. Please go through that as well. I'll provide the link in description. You may join the classes to cover all the topics in detail. Click the link in description to connect us for admission purpose. Thanks a lot for watching. Best of luck for exam, and please do not forget to share and subscribe to channel.